Namaskar, I welcome you all to this series on war strategies. Shatrum Chhidram Praharit, Atmit Chhidram na Prakashayate, Chhidram Prahanani Shatruva। अर्थशास्त्र में लिखित इस श्लोक में आचार्य श्री चाणक्य ने कहा है कि जहां भी शत्रु की दुर्बलता और दोष दिखाई दे उस पर वही प्रहार करना चाहिए। अपने दोष और अपनी दुर्बलता को कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए और जो आपकी दुर्बलता आपके दोष पर प्रहार करे उन्हें अपना शत्रु समझना चाहिए। गुप्तचर, असूचना और खुफिया विभाग की व्यवस्था, कार्यप्रणाली और उनके विभिन्न कार्यों को अर्थशास्त्र सहित हमारे अनेक प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से वर्णित किया गया है। Whenever we take a look at our historical strategic assets, we found that the institutions, processes, methods, and different means to intelligence that are described in them were quite solid, effective, complicated, yet arranged in a manner that the king was always updated about not just the domestic but the international political happenings as well. Their organizations, signal system, and the knowledge to secret means to intelligence were unmatched in the world. As a field, intelligence research creates a different kind of interest and curiosity, particularly in the young minds. But today, when our youth start exploring in this direction, they tend to pick up the resources that are easily accessible to them, easily understandable to them, and with which they could relate to, like the Hollywood Bollywood movies, web series, fiction novels, videos, etc. There's nothing wrong about it, but such content only caters to their fantasies. It does not solve their curiosity, the basic questions in their mind, like how intelligence research actually works, how the mind of an intelligence estimator thinks, how he formulates the intelligence problem, how the conceptual design of the intelligence problem is being done, what's the logical flow of this process, what are the tools, technique, methods, and what's the philosophy behind the intelligence research. There's a lack of contemporary resources that are sufficient enough to cover the practical aspect of intelligence research. By looking at the intelligence research only with fantasies and fiction, we will not learn anything. Looking beyond this, by understanding their real processes, their difficulties, their design, what are the challenges in this process, and their techniques, can enhance our creative abilities and critical thinking. And this episode is one step in that direction. But there is an interesting thing about our youth, particularly about those youth that are living in the tier 2, tier 3 cities and small villages. They are quite smart and they have the inherent abilities to look at the things from different perspectives, linking the different events, rational thinking, practicality, ability to visualize the things, or one can say that all the basic ingredients of an intelligence research mindset. Their familiarity with the logical aspects of intelligence research, its methods and philosophy, will bring a more clarity in their understanding about the national international events, political happenings, global change, the direction of national efforts, and our large national interest. During my search, I found a paper titled The Philosophy and Methodology of Intelligence, written by Professor Isaac bin Israel.
Professor Isaac Ben Israel at present heads Israeli Space Agency. He has worked in different domains: military, intelligence, technology, science, business, and academics. Due to his multiple domain expertise, his creative thinking has different shades, and his works are quite appreciable. तो आज के इस एपिसोड में हम उनके ही रिसर्च पेपर द फिलॉसफी एंड मैथडोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस पर चर्चा करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। पर मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर को सामान्य भाषा में प्रस्तुत करूं, क्योंकि ये पेपर मुख्यतः इंग्लिश में ही है। तो जो हमारे अर्बन सिटीज़ एंड मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले यूथ हैं हु आर फेमिलियर विद दिस मीडियम, दे कैन ईजली अंडरस्टैंड दिस। लेकिन इस एपिसोड का उद्देश्य है इस ज्ञान को हमारी उस युवा शक्ति के साथ साझा करना जो हमारे छोटे शहरों, गांव और कस्बों में रहती है, जो राष्ट्र के हित के लिए हमेशा सजग और तत्पर रहती है, लेकिन इंटरनेट पर जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग से रिलेटेड मटेरियल है वो प्राय इंग्लिश में होने की वजह से स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनसे वो अनभिज्ञ रहते हैं। तो हमारा प्रयास है कि इस जानकारी को सामान्य भाषा में उन तक पहुंचाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं टू नो हाउ इंटेलिजेंस रिसर्च एक्चुअली वर्क्स। इन द ईयर 1989 प्रोफेसर आइजैक बेन इजराइल ने एक रिसर्च पेपर अपना पब्लिश किया विद द टाइटल द फिलॉसफी एंड मैथडोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द लॉजिक ऑफ एस्टिमेट प्रोसेस। The paper got published in the Intelligence and National Security Journal. इस पेपर में उस समय जो इंटेलिजेंस रिसर्च की अप्रोच एंड मेथड्स में जो कन्वेंशनल मेथड्स थे उनमें जो डिफ़िकल्टीज आती थी उनको हाईलाइट करते हुए उनके सॉल्यूशंस को प्रपोज, उनमें कुछ अमेंडमेंट्स एंड मॉडिफिकेशन को प्रपोज किया गया है और बहुत ही लॉजिकल बेस पर उनको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए एक अमेंडेड क्रिटिकल मेथड भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो उन व्यूज़ को काउंटर करने का प्रयास किया है जिनका मानना था कि इंटेलिजेंस रिसर्च में साइंटिफिक मेथड की कोई रिलेवेंस नहीं है। उन्हें बहुत ही लॉजिकल तरीके से काउंटर करते हुए सम अमेंडमेंट, सम मॉडिफिकेशंस हैव बीन प्रपोज्ड इन दिस पेपर। तो हम उनके ऊपर चर्चा करते हैं। वैसे ये पेपर 6 पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन हम इसके लास्ट के 2 पार्ट 5th एंड पार्ट 6th पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग मेथड्स एंड अप्रोच दिए गए हैं इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एस्टिमेशन से रिलेटेड, और जो एग्जिस्टिंग अप्रोचेस हैं उनमें जो डिफ़िकल्टी आती थी उनको भी काउंटर किया गया है। साथ में कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स भी हैं। तो रिसर्च के जिस भाग पर हम लोग बात कर रहे हैं उसका उद्देश्य है इंटेलिजेंस रिसर्च की ट्रेडिशनल एस्टिमेशन एंड रिसर्च प्रोसेस में अमेंडमेंट एंड मॉडिफिकेशंस को सजेस्ट करना, उनमें क्या डिफ़िकल्टीज आती थी ये हाईलाइट करते हुए। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले उन डोमेन्स को पिक किया है जिनमें रिसर्च माइंडसेट के साथ काम होता है, क्योंकि इंटेलिजेंस बेसिकली एक रिसर्च फील्ड ही माना जाता है। तो whenever we hear the word research, what comes to our mind? The first thing that comes to our mind is science and technology. And science and technology इतना ज़्यादा frequently use होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है that this is one word. But basically these are the 2 different words. And there is a fundamental difference in the 2. So what's that fundamental difference? The paper says that the fundamental difference in science and technology can help us to resolve our difficulties in the intelligence research as well. And that difference is in the aim. The aim of science is truth and the aim of technology is success. But both share the same scientific method. We formulate the problem, then we develop our hypothesis, and then we test our hypothesis for refutation. सबसे पहले हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, फिर हम कुछ अजम्पशंस बनाते हैं,
फिर हम उनको खंडित करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। टेस्टिंग में हम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ करते हैं जो हमारी अपनी हाइपोथेसिस को रिफ्यूट करें। तो मेथड तो दोनों का सेम है, लेकिन अगर साइंस में आपका एक फॉल्सिफाइंग एक्सपेरिमेंट आपकी प्रिडिक्शन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो इसे सक्सेस माना जाता है। बट दिस इज नॉट द केस इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में फेल्ड एक्सपेरिमेंट विल नेवर बी कंसीडर्ड एज अ सक्सेस। यहाँ पे सक्सेस प्रोग्रेस से संबंधित है। यहाँ पे आप एक फॉल्स थ्योरी को भी यूज़ कर सकते हैं, बट द सक्सेस इन टेक्नोलॉजी मीन्स दैट अ टेक्नोलॉजी शुड वर्क। दैट्स द ओनली क्राइटेरिया ऑफ द सक्सेस। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों में। और टेक्नोलॉजी में जिन वैल्यूज़ की बात होती है, जैसे कि फियर ऑफ फेलियर, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, बजट, टाइम कंस्ट्रेंट वगैरह, उनको जनरली साइंस में बहुत ज़्यादा काउंट नहीं किया जाता है। ये भी एक डिफरेंस है दोनों में। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखने में बहुत ज़्यादा सेम लगते हैं, सिमिलर दिखते हैं, या तो उनके बीच का बॉर्डर ही नज़र नहीं आता। पर्टिकुलरली इन द अननोन, अनटेस्टेड, अप्रॉक्सीमेशन रिलेटेड सिनेरियोज, कहीं पर उनका डिफरेंस क्लियर दिखाई देता है। तो इसको इन्होंने हाईलाइट किया है और ये भी बोला है कि कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू बिल्ड एन एक्सलेरेटर, तो इसमें फिजिक्स भी यूज़ हुआ है एंड टेक्नोलॉजी भी यूज़ हुई है, तो विल इट बी कॉल्ड अ साइंटिफिक प्रोडक्ट और अ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट? दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड टू आंसर। और कुछ ऐसा ही कॉम्प्लिकेटेड है ये बताना कि इंटेलिजेंस रिसर्च टेक्नोलॉजी है या फिर साइंस है। इसलिए इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया है कि व्हाट्स द फाइनल एम, व्हाट्स द फाइनल गोल ऑफ एन इंटेलिजेंस रिसर्च? इज इट साइंस, ट्रुथ और टेक्नोलॉजी द सक्सेस? तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इंटेलिजेंस रिसर्च की जो प्रॉब्लम होती हैं उनमें कभी कभी ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों का ही यूज़ होता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि द ओनली वे टू सक्सीड इन एन इंटेलिजेंस रिसर्च प्रॉब्लम इज बाय रिवीलिंग द ट्रुथ। सो द राइट स्ट्रेटजी ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी द साइंस हियर, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स। इसके बाद उन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि भाई फिर इंटेलिजेंस रिसर्च का जो फील्ड है वो एक टेक्नोलॉजिकल ब्रांच जैसा डेवलप होना चाहिए, ऑफ कोर्स बाय साइंटिफिक डेवलपमेंट मेथड्स। जो प्रोसेस है टेस्टिंग की उसको आप साइंटिफिक तरीके से रखें, बट द फील्ड शुड बी टेक्नोलॉजिकल इन नेचर। वाई? बिकॉज इंटेलिजेंस इज़ अ प्रैक्टिकल फील्ड। और ये नहीं भूलना चाहिए दैट इंटेलिजेंस में हमेशा ऑब्जेक्टिव सक्सेस ही होता है, because you're carrying out intelligence with some objective। तो कभी साइंटिफिक मेथड यूज़ करते करते ट्रुथ डिस्कवरी करने में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाएं, उसको हाईलाइट करते उन्होंने कहा है दैट द गोल शुड ऑलवेज बी सक्सेस, लाइक इन द साइंस। अब ये भी बात है कि ट्रायल एंड एरर मेथड दोनों में यूज़ होगा, बट गोल क्या होना चाहिए उसको लेके क्लैरिटी की आवश्यकता है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी यूज़ होता है। इट इज़ एप्लीकेबल इन द इंटेलिजेंस रिसर्च एज वेल, बट इंटेलिजेंस रिसर्च इज़ अ प्रैक्टिकल फील्ड। अब क्वेश्चन आता है कि इंटेलिजेंस रिसर्च की जो प्रॉब्लम्स हैं आर दे मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द फिजिकल प्रॉब्लम्स? क्योंकि जनरली माना जाता है दैट द प्रॉब्लम्स इन इंटेलिजेंस रिसर्च आर वेरी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे उन्होंने इसको आर्ग्यू किया है। उन्होंने बोला है कि रियल वर्ल्ड की जो कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स होती हैं, द प्रॉब्लम्स इन द फिजिकल वर्ल्ड, दे आर ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दे आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अगर आपको वेदर ही प्रिडिक्ट करना है, इवन दो यू हैव ऑल द टूल्स, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो ऐसी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे फिजिकल वर्ल्ड की, उनमें हमारी अप्रोच क्या होती है? हाउ डू वी सॉल्व दोज प्रॉब्लम? वी जनरली यूज़ द पार्शियल सोल्यूशन and the approximation।
उनमें अक्सर अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ होता है. So the point which the paper is making is that if the approximation can be applied in the physical world problem, can be applied in the real world complicated problems, then it can be applied in the intelligence research as well. और अप्रॉक्सीमेशन के साथ कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं कि अप्रॉक्सीमेशन बेसिकली आपका अनुमान है. यू आर ओनली मेकिंग अ गेस. और लॉजिकली बोला जाए तो अप्रॉक्सीमेशन शुड ऑलवेज बी फॉल्स, क्योंकि ये ट्रुथ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ गेस. तो इसको वैसे ही डील करना चाहिए. अप्रॉक्सीमेशन के बेसिस पर जो आप हाइपोथेसिस बनाएं उसमें बहुत ही सावधानी से काम लेना चाहिए. और अप्रॉक्सीमेशन के साथ ये भी होता है, इट इज़ आवर ह्यूमन टेंडेंसी दैट वेन एवर वी मेक द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वी ऑलवेज थिंक वेरी रैशनली. हम बहुत ही रैशनैलिटी के साथ चीज़ों को सोचते हैं. दैट आवर एनिमी विल थिंक इन सो एंड सो वे. वी अप्लाई द रैशनैलिटी हियर. बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दैट द ह्यूमन माइंड हैज़ एन इनहेरेंट एलिमेंट कॉल्ड द फ्री विल. And the free will can surprise at any time. तो अप्रॉक्सीमेशन बेस्ड आप अगर एक हाइपोथेसिस बना रहे हैं, एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं, देन डोंट फॉरगेट द फ्री विल ऑफ द ह्यूमन माइंड. क्योंकि वो फ्री विल के साथ ह्यूमन माइंड किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी चैलेंज में, किसी सिनेरियो में, किसी इमोशन पर कैसे रिएक्ट करेगा, दैट नो थ्योरी कैन प्रिडिक्ट. वी आर नॉट द प्रिडिक्टेबल एंटिटीज. So this is not possible to predict. इसलिए जब रैशनैलिटी के बेसिस पर हाइपोथेसिस बने, रैशनैलिटी के बेसिस पर अप्रॉक्सीमेशन किया जाए, तो बहुत ही सावधानी के साथ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए. कोई लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट करने से बचना चाहिए. और जैसे कि टेक्नोलॉजी में छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वैसे ही एक्सपेरिमेंट करने चाहिए. दैट्स द होल पॉइंट हियर. इन्होंने यहाँ पर एयरक्राफ्ट बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया है. जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियर्स काम करते हैं तो वो डिफरेंट पार्ट्स को पहले बिल्ड करते हैं, उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, एंड देन दे मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट आपने बिल्ड कर दिया एंड नाउ यू विल टेस्ट इन द फर्स्ट फ्लाइट. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो ठीक वैसे ही रैशनैलिटी हाइपोथेसिस के साथ, अप्रॉक्सीमेशन के साथ हमको अपने एक्सपेरिमेंट करने चाहिए इन द फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस रिसर्च. अप्रॉक्सीमेशन की जब बात आती है तो ये भी बात आती है दैट हाउ मच प्रिसाइज इज योर अप्रॉक्सीमेशन. और वहाँ पे इनएग्जैक्टिट्यूड एंड एग्जैक्टिट्यूड की बात आती है. द लेवल ऑफ एग्जैक्टिट्यूड इन योर अप्रॉक्सीमेशन. अब लेवल ऑफ एग्जैक्टिट्यूड अगर नहीं है, इनएग्जैक्टिट्यूड है, तो दिस इज़ अ साइन ऑफ अ सिम्टम, नॉट एन इलनेस. ये दिखाता है कि आइदर आपका इंटेलिजेंस साइंस और आइदर इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी अभी मैच्योर नहीं है, इट इज़ अंडर डेवलपमेंट, या फिर प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. लेकिन ये 1989 की बात है. उस समय जो टूल यूज़ होते थे उनमें लेवल ऑफ एग्जैक्टिट्यूड काफ़ी लोअर होता था. लेकिन अगर हम आज की बात करें इन द 21st सेंचुरी, तो अभी जो टूल यूज़ होते हैं फॉर द असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन, दे हैव इनहेंस द लेवल ऑफ एग्जैक्टिट्यूड इन अ रिमार्केबल लेवल. बट यहाँ पर एक बात जो तब भी महत्वपूर्ण थी और अब भी महत्वपूर्ण है, वो ये है जिसे प्रोफेसर आइजैक मिनेज़ेल ने हाईलाइट किया है. उन्होंने ये तो कहा है दैट विद द टाइम हमारा लेवल ऑफ एग्जैक्टिट्यूड इम्प्रूवमेंट के साथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन द इंटेलिजेंस साइंस एज वेल, बढ़ता जाएगा. But we will never be able to reach the total precision because we are talking about the human minds. And we cannot precisely predict the human mind. There is no such theory, no method exists. As long as the man with the free will are there. और उन्होंने ये भी कहा है that errors cannot be avoided, but their margin can be reduced by learning from the error. तो उनका जो मेथड है उसमें स्कोप है टू लर्न फ्रॉम द एरर्स. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जब लर्निंग फ्रॉम एरर्स की बात आती है, देन ही हाईलाइटेड द नेचर ऑफ
वर्किंग कल्चर ऑफ द इंटेलिजेंस कम्युनिटी। और उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी एक क्लोज सोसाइटी जैसा काम करती है। इट हैज़ सर्टन रीज़न। आखिर सिक्योरिटी से रिलेटेड बात है। वी कैन नॉट एक्सपोज एवरीथिंग टू एवरीवन। तो जो आइज़ ओनली रूल है उसके हिसाब से काम होता है। मतलब जो रिपोर्ट जिसके लिए इंटेंडेड है वही उसे रीड करे। इवन विद इन द इंटेलिजेंस टीम इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। बट उन्होंने कहा है कि कभी कभी ये जो अप्रोच है, ये जो ओवर हमने क्लासिफाइड किया है अपने मेथड्स को, अपनी अप्रोचेस को, अपने वर्किंग स्टाइल को, दिस इज़ ऑल्सो अ हर्डल इन अवर ऑन इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर उन्होंने सजेस्ट किया है कि विद इन द इंटेलिजेंस कम्युनिटी हमें माहौल थोड़ा ओपननेस का बनाना चाहिए। वी शुड इंट्रोड्यूस सम लेवल ऑफ ओपननेस विद इन द इंटेलिजेंस कम्युनिटी। कुछ इसी तरीके के रिसर्च पेपर, एसेज एंड डिस्कशंस होने चाहिए जिससे यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहे। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि पब्लिक डोमेन में तो हम नहीं अवेलेबल करा सकते हैं, बट हम पब्लिक एक ओपन सोसाइटी का जो इन्वायरमेंट है उसे इंटेलिजेंस कम्युनिटी में डेवलप करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। एंड देयर इज़ वन थिंग दैट कैन ऑल्सो डू कि हम जो इंटेलिजेंस रिसर्च की ओल्ड एंड एक्सपीरियंस हैं, ओल्ड प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम हो चुका है, उन्हें यूनिवर्सिटीज़ में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, स्टूडेंट के बीच में हम सर्कुलेट करके उनके बीच में इस तरीके के डिस्कशंस करा सकते हैं जिससे उनका वे ऑफ थिंकिंग, उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ इम्प्रूव हो। एंड जब आपके इंटेलिजेंस की जो ऑडियंस है उसकी एबिलिटीज़ इम्प्रूव होगी तो ओवरऑल बेटर रिजल्ट वहाँ पर आएंगे। दैट्स द होल पॉइंट विच ही मेड। कभी कभी ये भी कहा जाता है दैट इंटेलिजेंस की जो रिसर्च होती है उसमें देयर इज़ अ लैक ऑफ टाइम। वी डोंट हैव द टाइम टू बी साइंटिफिक। हमें जल्दी ही डिसीजन लेना होता है। वी हैव टू टेक द प्रॉम्प्ट डिसीजन, सो यू डोंट हैव द टाइम टू क्रिएट द हाइपोथेसिस एंड देन टेस्ट देम फॉर रिफ्यूटेशन। इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। तो इसको काउंटर करते हुए प्रोफेसर आइजैक बिन इजराइल ने कहा है कि येस, देयर आर सर्टन सिचुएशन व्हेन वी डू हैव द लैक ऑफ टाइम, बट दैट्स नॉट द केस ऑलवेज। जब इमरजेंसी सिचुएशन है, लेट्स से आपके सर पर एनिमी का एयरक्राफ्ट आया है एंड यू हैव टू प्रिडिक्ट whether it's a part of an exercise or a war, so there you have to take the prompt decision. यहाँ पे ऑब्वियसली आप अपनी गट फीलिंग का, अपने इंट्यूशन का, अपने एक्सपीरियंस एंड नॉलेज का यूज़ करके आप एक प्रिडिक्शन करेंगे। बट जो लॉन्ग टर्म वाले सिनेरियोज हैं वेयर वी डू हैव अ फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, वहाँ पे हमें साइंटिफिक मेथड्स को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। दिस लैक ऑफ टाइम शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज टू नॉट यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स। कॉस्ट ऑफ फेलियर के ऊपर फिर उन्होंने पॉइंट रखा है। एक्सपेरिमेंट अगर फेल हो, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर आपकी प्रिडिक्शन को कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ आए तो साइंस में इसे सक्सेस कहा जाता है। इट इज़ डिजास्ट्रस इन टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ कैटास्ट्रॉफिक इन इंटेलिजेंस, क्योंकि यहाँ पर वी आर रिस्किंग द ह्यूमन लाइफ। द कॉस्ट ऑफ फेलियर इज़ एक्सट्रीमली हाई इन इंटेलिजेंस लाइक इन टेक्नोलॉजी। उन्होंने उदाहरण दिया है शिप बिल्डिंग का, टाइटैनिक का एग्जाम्पल दिया है कि शिप बिल्डिंग में एक रॉन्ग प्रिडिक्शन की वजह से एक अलिजिडली अनसिंकेबल शिप अपने बहुत सारे पैसेंजर के साथ अगर सिंक हुआ, सो दैट वॉज द लेवल ऑफ एरर, द क्रिटिकलिटी ऑफ द एरर इन द इंटेलिजेंस रिसर्च एज वेल। इसी तरीके के एरर टेक्नोलॉजी की फील्ड में लार्ज प्रोजेक्ट्स में होते हैं एंड द सेम कैन हैपन इन इंटेलिजेंस। तो कॉस्ट ऑफ फेलियर को ध्यान में रखना यहाँ पे जरूरी है। अब हम कॉस्ट ऑफ फेलियर को मिनिमाइज कैसे करते हैं टेक्नोलॉजी में? व्हाट इज आवर वे टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फेलियर? वी अप्लाई द साइंटिफिक मेथड्स, पर्टिकुलरली इन द टेस्टिंग। हम उसे बहुत ही साइंटिफिक तरीके से करते हैं। तो द सेम कैन बी डन इन द इंटेलिजेंस रिसर्च। अगर आपको एरर्स तो यू कैन नॉट प्रिवेंट, failure you cannot prevent, but to minimize the error and to learn from the errors in the future, take the errors as a learning, the application of scientific methods
in the intelligence research is necessary. Throughout the paper उन्होंने यही हाईलाइट किया है that साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करने से ना सिर्फ बेटर प्रिडिक्शन होती है बल्कि अपने एरर से हम सीखते हैं. देयर इज अ स्कोप फॉर लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट. अब एक और पॉइंट आता है इंटेलिजेंस रिसर्च में, दैट इज एस्टिमेटिंग द इंटेंशंस. मतलब आपको अपने एनिमी की और आइदर एनिमी सोसाइटी की इंटेंशंस को एस्टिमेट करना है. सो हाउ कैन वी एस्टिमेट द इंटेंशंस? और अगर हमने इंटेंशन को एस्टिमेट कर भी लिया कि व्हाट आर एनिमी इज थिंकिंग राइट नाउ, हाउ वी विल वेरीफाई दैट? तो इसका आंसर सिंपल है. वी कैन नॉट एस्टिमेट द इंटेंशन ऑफ आवर एनिमी बिकॉज वी नो दैट ही कैन चेंज हिज माइंड एट एनी टाइम एंड वी कैन नॉट वेरीफाई आवर एस्टिमेशंस. हम अपनी कंजेक्चर्स को वेरीफाई भी नहीं कर सकते. बट इसका मतलब ये नहीं है दैट एस्टिमेशन लगाना, अटकल लगाना, अनुमान लगाना इज फॉरबिडन इन इंटेलिजेंस रिसर्च. समटाइम वी हैव टू डू इट. तो इंटेलिजेंस रिसर्च में एस्टिमेशन का तो रोल है, क्योंकि इसके थ्रू हम अगर ये गैस नहीं कर सकते कि क्या होगा, तो हम ये तो गैस कर सकते हैं कि क्या क्या नहीं होगा. इसलिए वहाँ पर इसका रोल है. लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है दैट एस्टिमेट्स ऑन इंटेंशन कैन वर्क ओनली फॉर द शॉर्ट पीरियड. क्योंकि जब तक आपकी जो अजम्पशन है जिन पर आपने ये एस्टिमेट लगाया है अबाउट द इंटेंशन ऑफ योर एनिमी, टिल दोज एजम्पशंस आर वैलिड, ओनली देन दिस एस्टिमेट इज वैलिड. तो एक शॉर्ट पीरियड के लिए, लेट्स से फॉर अ मंथ यू कैन डू दिस. अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो लेट्स से हमें पता चलता है दैट आवर एनिमी इज गोइंग फॉर अ वॉर विद अस इन द नेक्स्ट वीक. तो हम कुछ ट्रेडिशनल कन्वेंशनल अप्रोच के थ्रू इंटेलिजेंस की ये तो पता लगा सकते हैं कि वॉर होगा या नहीं होगा फॉर अ वीक और फॉर अ मंथ. अगर वॉर की प्रिपरेशन से रिलेटेड वहाँ पर बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है, वहाँ पे कोई लिस्ट दी गई है इंटरनली, तो इंटरनल कन्वेंशनल मेथड्स के थ्रू, इनसाइडर इंफॉर्मेशन के थ्रू वी कैन नो दैट. लेकिन वी कैन नॉट क्लेम दैट हमने उसकी इंटेंशन को पूरे के पूरे साल के लिए प्रिडिक्ट कर लिया. That is not possible. So intention की estimation can work only in a short period, not on a long period. It can work only, let's say, for a month, not more than that. तो उन्होंने उसके बाद अब लास्ट में अपने पॉइंट्स को, पार्ट 5 के जो पॉइंट्स हैं उन्हें समराइज़ किया है. समराइज़ करते हुए पहले उन्होंने ये भी बोला है कि जब इस तरीके की आप एस्टिमेट ऑन इंटेंशंस पर काम करें तो इंटेलिजेंस के सिस्टम में क्या किया जाता है कि जनरली एक लिस्ट बना ली जाती है ऑन ऑल द पॉसिबल अजम्पशंस. और उसके बाद जब भी उन अजम्पशन से रिलेटेड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड कुछ भी चेंज होता है तो पूरा का पूरा एस्टिमेट फिर से तैयार किया जाता है. दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क इन द इंटेलिजेंस. यहाँ पर पार्ट 5 को उन्होंने कंक्लूड किया है. उन्होंने बोला है कि इंटेलिजेंस रिसर्च को जनरली एक इंडिपेंडेंट एकेडमिक फील्ड में नहीं माना जाता है. इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन. इसे एक इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन जैसा देखा जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड जैसा देखा जाता है, जिसकी जो मेथड्स हैं वो अलग अलग ब्रांचेस से डिराइव हैं, फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस, फ्रॉम सोशल साइंस एंड फ्रॉम हिस्ट्री. और हिस्टोरिकल मेथड्स तो उस वक्त इंटेलिजेंस रिसर्च में बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे. हिस्टोरिसिज्म्स की जो अप्रोचेस थी, दे वर डोमिनेटिंग ऑन द इंटेलिजेंस रिसर्च जिस समय का ये पेपर है. तो पार्ट 6 में प्रोफेसर आइजैक बिन इजराइल ने उन मेथड्स को काउंटर किया है, उन मेथड्स के ऊपर अपने पॉइंट्स रखे हैं, अपने ओपिनियन रखे हैं. नेक्स्ट पार्ट में प्रोफेसर ने, विच इज़ द 6th पार्ट, उन्होंने यहाँ पे जो हिस्टोरिसिस्ट मेथड्स हैं इंटेलिजेंस रिसर्च के उनको कॉन्ट्राडिक्ट किया है, उनको कन्फ्रंट किया है. उनका कहना है कि इस मेथड के जो प्रोपोनेंट हैं वो लार्ज स्केल प्रेडिक्शंस के ऊपर अक्सर एम्फेसिस करते हैं. और हिस्टोरिसिज्म के भी 2 वर्जन हैं, एंटी साइंटिफिक हिस्टोरिसिज्म एंड प्रो साइंटिफिक हिस्टोरिसिज्म. और ये पेपर दोनों को ही रिजेक्ट करता है, क्योंकि इस पेपर की जो सजेशन है वो हिस्टोरिसिज्म से काफ़ी डिफरेंट है.
सबसे पहले अगर हम एंटी साइंटिफिक हिस्टोरिसिज्म की बात करें तो इसका बेस पॉइंट है कि द एनिमी और द एनिमी सोसाइटी इन जनरल रिजेंबल्स अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म. It has a memory, a history, it learns from its error, and it can make adjustment to its approach to varying degrees of realities. तो जब भी आप एनिमी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, ऑलवेज लुक एट द एनिमी एज अ होल. यहाँ पे होलिज्म का कॉन्सेप्ट है दैट लुक एट द थिंग्स ऑन अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव. आप सिर्फ उसकी इकोनॉमी, उसकी लैंग्वेज, उसके कल्चर को ही ना ऑब्जर्व करें. यू शुड ऑब्जर्व द एनिमी एज अ होल इन अ लार्ज होलिस्टिक पर्सपेक्टिव. उसके हिस्टोरिकल प्रोसेसेस को ध्यान रखते हुए, वहाँ पे जो अभी ट्रेंड चल रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, देन यू मेक एन अजम्पशन. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ हिस्टोरिसिज्म एंड द एंटी साइंटिफिक हिस्टोरिसिज्म. होलिस्टिक व्यू के साथ इन्वेस्टिगेट करने को ही अप्रोप्रिएट मेथड यहाँ पे कहा गया है. पर प्रोफेसर आइजैक बिन इजराइल इससे सहमत नहीं है. उनका कहना है कि होलिज्म डज नॉट वर्क इन दिस कंटेक्स्ट. जब भी हम किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑलवेज डू इट ऑन द सेलेक्टेड पार्ट्स. बहुत ही सेलेक्टिवली हम उसे करते हैं. ऐसा कोई मेथड ही नहीं है कि आप होलिस्टिकली किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकें. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो पहली बात तो एक होल सोसाइटी को, उसके सारी की सारे एस्पेक्ट्स को एक्सपेरिमेंट करने का, उसके ऊपर अपना असेसमेंट देने का, अपना हाइपोथेसिस क्रिएट करने का कोई वे नहीं है. और अगर हमने किया भी तो ये इनअप्रोप्रिएट माना जाएगा इन टर्म्स ऑफ फॉल्सिफाइंग हाइपोथेसिस. फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आवर गोल. अगर आप होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखने की बात कर भी रहे हैं तो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखने से आपको चीज़ें बस समझ में आएंगी. यू विल ओनली बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. तो आपका गोल क्या है? डू यू वांट एन अंडरस्टैंडिंग और अ कॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग्स? आपको वहाँ पे जो कॉजेज है उनके बारे में पता लगाना है और जस्ट वांट एन अंडरस्टैंडिंग. दैट शुड बी क्लियर टू यू. मतलब सिर्फ क्या हुआ ये काफ़ी है या फिर कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये भी पता लगाना है. क्योंकि एंटी साइंटिफिक हिस्टोरिसिज्म तो क्यों और कैसे को पूरी तरह से रिजेक्ट करता है. इसका कहना है कि इंटेलिजेंस एस्टिमेटर का ये काम ही नहीं है. उसका काम है बस ये बता देना कि क्या हुआ और ये प्रिडिक्ट कर देना कि क्या हो सकता है. दैट्स इट. यू नीड नॉट टू टेल कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस पर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ हिस्टोरिसिज्म एंड एंटी साइंटिफिक हिस्टोरिसिज्म. इस पॉइंट के जो प्रोपोगेटर्स हैं उनका कहना है कि एक सिंगल फिनोमिना को आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट ऑब्जर्व द होल कॉम्प्लेक्स पिक्चर इन विच दिस सिंगल फिनोमिना इज़ अ पार्ट ऑफ. तो योम किपुर जो वॉर था उसका एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अब उस वॉर को अगर हम उसके सिनेरियो को ध्यान से देखें, बेसिकली योम किपुर वॉर जो अक्टूबर 1973 में हुआ था वो एक सरप्राइज अटैक माना जाता है ऑन इजराइल. और ये माना जाता है दैट वहाँ पे कुछ इंटेलिजेंस एस्टिमेशन में फेलियर्स थे फ्रॉम द इजरायली साइड. तो इन्होंने उस पॉइंट को यहाँ पर रेफ़र किया है और बोला है कि अगर एंटी साइंटिफिक हिस्टोरिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें ये ऑब्जर्व करना था कि सदात ने 1 ईयर पहले ही अपने एक वॉर मिनिस्टर को रिप्लेस किया है. अब हमें ये पता तो था, इंटेलिजेंस रिसर्च को ये लीड्स थे, बट हमने इसे समझा नहीं. हमें इसे ऐसे लेना चाहिए था कि वॉर मिनिस्टर का हटाने का मतलब है कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को एंड किया एंड द कॉन्सेप्ट वाज दैट इजिप्ट कैन नॉट गो फॉर वॉर विद इजराइल until it has the air strike capability to penetrate inside the Israel. अगर इस पर्सपेक्टिव में हमने उसे समझा होता तो मे बी हमने बेटर प्रेडिक्शन की होती और इंटेलिजेंस फेलियर से हम बच जाते. दैट इज़ द पॉइंट ऑफ एंटी साइंटिफिक हिस्टोरिसिज्म. बट दिस साउंड्स वेरी रीजनेबल इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. वो कहा जाता है ना कि इवेंट होने के बाद वाइज होना बहुत आसान है, लेकिन जब आप एक इंटेलिजेंस की रियल प्रॉब्लम को, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को मैनेज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर इन अ वॉर लाइक सिनेरियो, वहाँ पे इस तरीके की कैजुअल प्रेडिक्शंस करना कि कोई कॉन्सेप्ट एंड हुआ है, कुछ हिस्ट्री के ऊपर इसका बेसिस है,
ये जनरली एक हेल्दी साइन नहीं माना जाता है. It is not considered as a right way to make a prediction. तो उसी को यहाँ पर प्रोफेसर आइजैक बिन इजराइल ने भी पॉइंट आउट किया है. उन्होंने एंटी साइंटिफिक हिस्टोरिसिज्म को 2 पार्ट में काउंटर किया है. उनका कहना है कि सबसे पहली बात तो ये है दैट नथिंग कैन बी फुली इन्वेस्टिगेटेड, फुली अंडरस्टूड, फुली डिस्क्राइब्ड और फुली एनीथिंग. एंड सेकेंड, ऑल्दो उन्होंने ये माना है कि ठीक है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी हैव सर्टेन एक्सेसिबिलिटी टू आवर एनिमीज माइंड. मतलब हम ये सोच सकते हैं कि हाउ आवर एनिमी इज थिंकिंग, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बट ये सोचने का मतलब नहीं है दैट यू आर पेनिट्रेटिंग इनटू हिज माइंड. यू आर ओनली मेकिंग एन अजम्पशन. तो आपकी बात एक्चुअली में गेस है. इट्स नथिंग मोर देन अ हाइपोथेसिस. और अगर आपने अनुमान लगा भी लिया दैट व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड द एनिमीज माइंड, तो आप उसे वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करने के लिए अपने हाइपोथेसिस को तो आपको साइंटिफिक मेथड का यूज़ करना ही पड़ेगा. तो ये कहना कि साइंटिफिक मेथड का इंटेलिजेंस रिसर्च में कोई यूज़ नहीं है, दिस इज़ नॉट अ वैलिड पॉइंट. टू वेरीफाई योर ऑन assumptions, to verify your own hypothesis, you will have to use the scientific methods. उन्होंने ये भी पॉइंट बोला है कि अगर हम क्वेश्चंस की बात करें इंटेलिजेंस एस्टिमेशन के, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन से इंटेलिजेंस एस्टिमेटर को डील करना चाहिए कि वाई हैज़ द इजिप्टियन आर्मी, उस समय की बात है, डिप्लॉयड नियर द सुएज कैनाल इन अक्टूबर 1973. Why has Syria withdrawn part of its army from the Lebanon? ऐसे क्वेश्चन कि what happens near the canal, what are the Syrians doing, these questions are important, but they can be a part of the much important question, more important questions, the larger questions which forms the why and the how part. What जानना तो important है, but जब why को आप जानने का प्रयास करते हैं तो उसमें what अपने आप आ जाता है. क्योंकि जब आपको ये जानना है कि क्यों हुआ, तो ऑब्वियसली यू शुड नो कि क्या हुआ, और आप उसमें और आगे जाएंगे तो आप जानेंगे कि कैसे हुआ, द हाउ पार्ट. तो व्हाई एंड हाउ, द साइंटिफिक अप्रोच शुड बी अप्लाइड इन द इंटेलिजेंस रिसर्च एस्टिमेशन क्वेश्चंस. बेसिकली कहा जाए तो अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा यूजफुल है कॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ द मूव्स. अब हिस्टोरिसिज्म का जो दूसरा वर्जन है दैट इज प्रो साइंटिफिक हिस्टोरिसिज्म. ये किसी भी मामले में एंटी साइंटिफिक से डिफरेंट नहीं है. बस इसमें यह कहा गया है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रिसर्च के थ्रू ही इंटेलिजेंस रिसर्च होना चाहिए, बिकॉज इंटेलिजेंस रिसर्च इज सिंपली अ हिस्ट्री. लेकिन आपको यहाँ पे इमिटेट करना चाहिए साइंटिफिक मैथड्स. यू शुड इमिटेट द साइंस इन द हिस्ट्री एंड इंटेलिजेंस रिसर्च. तो हमारी जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रिसर्च का, वो हिस्टोरिकल प्रोसेस ना हो के फोर्सेस एंड सोशल चेंज के जो ट्रेंड चल रहे हैं वो होने चाहिए. इस पॉइंट पर प्रोफेसर आइजैक बिन इजराइल ने कहा है कि ये जो प्रो साइंटिफिक हिस्टोरिसिज्म है ये बेसिकली कंफ्यूजिंग टर्म्स के ऊपर बेस है. यहाँ पे कहा गया है कि जैसे साइंटिफिक प्रिडिक्शन में लॉ ऑफ नेचर पर बेस्ड होती है, वैसे ही हमें भी लॉ ऑफ सोशल चेंज के ऊपर अपनी प्रिडिक्शन करनी चाहिए. लेकिन ट्रेंड्स एंड लॉज एंड इवेंट्स में बेसिक एक डिफरेंस होता है, उसे समझने की ज़रूरत है, और वो डिफरेंस ही इस अप्रोच में क्लियर नहीं है. तो प्रोफेसर आइजैक बिन इजराइल ने कहा है कि ट्रेंड और इवेंट जो होता है वो जनरली सिंगुलर स्टेटमेंट के थ्रू डिस्क्राइब होता है. जैसे कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी एक्सट्रीम हो रही है, दिस कैन बी कॉल्ड अ ट्रेंड. लेकिन जो लॉज होते हैं दे आर ऑलवेज बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल स्टेटमेंट, और उनका जनरली जो एक्सप्लेनेशन का तरीका होता है वो ऐसे होता है दैट व्हेन एवर ए हैपन्स द बी हैपन्स. जब जब ऐसा होता है तब तब ऐसा होता है. दैट्स हाउ वी टॉक अबाउट द लॉज. लॉज ज़्यादा परमानेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, तो उनके बेसिस पर तो इंटेलिजेंस रिसर्च को प्रिडिक्ट करना फाइन है. लेकिन आप कह रहे हैं कि ट्रेंड के बेसिस पे करना चाहिए, सोशल चेंज के बेसिस पर करना चाहिए जो ट्रेंड चल रहे हैं, तो वो
सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि वो ट्रेंड कब तक वैलिड रहेगा यू नेवर नो। तो एक तरफ तो हिस्टोरिसिज्म ये कहता है दैट द प्रेडिक्शन शुड बी लार्ज स्केल, इट शुड बी होलिस्टिक, एंड उसके बाद ये कहता है कि वी शुड बेस्ड आवर प्रेडिक्शन ऑन द ट्रेंड्स, ऑन द लॉज ऑफ सोशल चेंज। सो लॉ ऑफ सोशल चेंज हैव अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ, वो काफ़ी टेम्पररी होते हैं। तो अपने आप में इस अप्रोच में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उनको प्रोफेसर आइजैक बिन इजराइल ने हाईलाइट किया है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि साइंस को इमिटेट करने की प्रोसेस में कभी कभी हिस्टोरिसिज्म्स के मेथड में ये भी कहा जाता है कि वी शुड अफेक्ट द फैक्टर्स ऑफ अ सोसाइटी। हम उनको जो डायनामिक्स हैं, लाइक उनका जो नेशनल प्राइड है, जो फोर्सेस हैं, इकोनॉमिक और मेंटल फोर्सेस के साथ साथ जो बाकी उनके डायनामिक्स में काउंट होते हैं एनिमी सोसाइटी में, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो प्रोफेसर आइजैक बिन इजराइल ने कहा है कि ये साइंस को इमिटेट करने के नाम पर इस तरीके की अगर अप्रोच को हम फॉलो करें तो हम प्रेडिक्शन तो कर लेंगे, बट इन द लॉन्ग टर्म दिस विल हैव द फार रीचिंग एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस। और ये कहीं ना कहीं अनएथिकल अप्रोच है। उसके बाद इस पेपर को उन्होंने कंक्लूड किया है विद द एग्जाम्पल ऑफ द योम किपुर वॉर। एज आई सेड, द अक्टूबर 1973 का जो योम किपुर वॉर था, उसमें माना जाता है दैट इंटेलिजेंस रिसर्च जो थी, जो एस्टिमेशन थी इसराइल की, वो कुछ हद तक फेल रही थी टू प्रिडिक्ट द आउटब्रेक ऑफ द वॉर। उसको इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। और उसको हाईलाइट करने के साथ साथ प्रोफेसर आइजैक बिन इजराइल ने जो ट्रेडिशनल अप्रोच के मेथड्स हैं जिनके थ्रू उस वक्त असेसमेंट किया गया था, उसको हाईलाइट किया है, और अपने क्रिटिकल मेथड को जो वो प्रपोज करते हैं उसको हाईलाइट किया है टू सी द डिफरेंस इन द एस्टिमेशन एंड द रिसर्च। तो उन्होंने ये बताया है कि इंटेलिजेंस एस्टिमेट का जो प्रोसेस था वो वॉर शुरू होने से पहले, काफ़ी पहले ही शुरू हो गया था, क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ पे अनयूजुअल एक्टिविटी की रिपोर्ट इजीली इंटेलिजेंस के पास आ रही थी। तो उस समय वो लोग जिस प्रोसेस के थ्रू एस्टिमेशन कर रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग पर बेस्ड था, तो इसे उन्होंने यहाँ पर नेचुरल मेथड कहकर रेफ़र किया है, और अपने मेथड को उन्होंने क्रिटिकल मेथड कहकर रेफ़र किया है। उनका कहना है दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर 1973 Israeli intelligence reported some unusual activity on the Egyptian side. वैसे तो 1973 का जो साल था उसमें मैनी टाइम्स बिफोर द वॉर इजिप्शियंस ने सुएज कनाल के पास लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेस कई बार की थी। तो इजरायली इंटेलिजेंस की उन मूवमेंट्स पर तो नज़र थी। दे वर वरीड अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वॉर, पर उनके जो एस्टिमेट थे वो बार बार यही शो कर रहे थे that some large scale exercise is going on, and in a week they are going to launch a more large scale exercise on near the Suez Canal. उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो इसी पॉइंट को बार बार वेरीफाई कर रही थी that this is a military exercise or a demonstration of the power, politically motivated demonstration of the power. From the end of September 1973 to the outbreak of the war, कई बार इसराइल की लीडरशिप टीम, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ इंटेलिजेंस रिसर्च के बीच में मीटिंग हुई। हर बार जो चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर थे वो इसी बात पर, इसी पोजीशन पर कंसिस्टेंट थे कि युद्ध की संभावना कम है, देयर इज़ अ लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज गोइंग ऑन। इजिप्ट के पास कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। सीरियन फ्रंट जो था वो टेंस तो था, बट सीरिया वुड नॉट फाइट अलोन। Egypt would not go to the war unless it had the capability to strike inside the Israeli territories. और जो भी इंफॉर्मेशन आ रही थी वो इसी को वेरीफाई कर रही थी, इसी कॉन्सेप्ट की लाइट में देखी जा रही थी। कहा जाए तो इजिप्ट की तरफ से एक मिलिट्री एक्सरसाइज का डिसेप्शन क्रिएट किया गया था। मई एंड अगस्त के बीच में इजिप्शियंस ने कई सारी ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइजेस की थी नियर द बॉर्डर, और इजिप्ट का जो प्रेस था उसके थ्रू भी ये बात फैलाई जा रही थी कि अक्टूबर 1 से लेके 7 अक्टूबर तक 1 वीक की लॉन्ग मिलिट्री एक्सरसाइज इजिप्ट वहाँ पे करने वाला है।
तो ऐसी इनफ इंफॉर्मेशन, इनफ एस्टिमेट थे जो एक्सरसाइज हाइपोथेसिस को ही वेरीफाई कर रहे थे। बीच बीच में कभी कभी ऐसी रिपोर्ट्स भी आती थी जो इस हाइपोथेसिस को कॉन्ट्राडिक्ट करती थी, पर वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि जो ऑफिशियल एस्टिमेट था उसे रिप्लेस किया जा सके। उन्हें बस डाउट की कैटेगरी में डाल के रखा गया था। Even before the outbreak of the war, the meeting that held before the war, just one day before the war, उसमें भी इंटेलिजेंस के जो इनके ऑफिसर थे उनके एस्टिमेट यही थे कि वॉर होने की संभावना नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ रिपोर्ट्स को उन्होंने इस पीरियड में इन्वेस्टिगेट किया। सभी की सभी एक्सरसाइज हाइपोथेसिस को हाईलाइट कर रहे थे एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस। ऐसा नहीं है कि उन एक्सेप्शंस को ध्यान नहीं दिया गया, बट उन्हें डाउट की कैटेगरी में रखा गया, एज आई सेड अर्लियर। यहाँ पर अब प्रोफेसर आइजैक बिन इजराइल का कहना है दैट अगर इंटेलिजेंस एस्टिमेट को उस समय जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उस समय वेरीफाई करने के ऊपर सारा फोकस था। हम ये देख रहे थे कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें से हमारी किस हाइपोथेसिस को वो ज़्यादा वेरीफाई कर रही हैं, उस अप्रोच के साथ ये एस्टिमेशन किया गया था। अगर उसी एस्टिमेशन को, जिस मेथड को प्रोफेसर आइजैक बिन इजराइल ने प्रपोज किया है, उस प्रोसेस के थ्रू किया जाता तो क्या होता। तो प्रोफेसर आइजैक बिन इजराइल का जो प्रपोज्ड मेथड है, द क्रिटिकल अमेंडेड मेथड, उसकी प्रोसेस कुछ ऐसी है कि पहली स्टेज में तो सबसे पहले हाइपोथेसिस क्रिएट किए जाते हैं। मतलब जितने भी हाइपोथेसिस आपके माइंड में आ रहे हैं, ऑल द पॉसिबिलिटीज अबाउट द सिचुएशन, एसेस्ड पॉसिबिलिटीज़, उनको आप सबसे पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो लेट्स से 2 हाइपोथेसिस बन रहे थे, वॉर हाइपोथेसिस एंड एक्सरसाइज हाइपोथेसिस। तो आपको दोनों को रिटर्न डाउन करना चाहिए था वाया दिस मेथड, और उसके बाद दोनों ही हाइपोथेसिस को बराबर का वेट देते हुए उन्हें एनालाइज करना था। एट द एंड ऑफ द डे वॉर और एक्सरसाइज दोनों का हाइपोथेसिस ही था, तो हाइपोथेसिस को बराबर वेट देना चाहिए था। सेकेंड स्टेज में हम अपने ही हाइपोथेसिस को क्रिटिसाइज करते हैं। वी लुक एट आवर हाइपोथेसिस विद अ क्रिटिकल माइंड। जैसे कि हम टेक्नोलॉजी में टेस्टिंग करते हैं, अपने हाइपोथेसिस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए ही एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं, वैसे ही अपने हाइपोथेसिस को आपको रिफ्यूटेशन के लिए यहाँ पर टेस्ट करना होता है, रिफ्यूट करना होता है। तो ऐसा करने से 3 ग्रुप्स बनते। ग्रुप ए, जिसमें वो रिपोर्ट्स रहते that were incompatible with the war hypothesis. ग्रुप बी में वो रिपोर्ट्स रहते that were incompatible with the exercise hypothesis. और ग्रुप सी में वो रिपोर्ट्स रहते जो वॉर एंड एक्सरसाइज दोनों के साथ कंपैटिबल थे। ऐसा करने से सबसे पहली बात तो यही होती है कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं उनका कैटेगराइजेशन हो जाता। इंस्टेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिपोर्ट्स को सॉर्ट करने की जगह, क्योंकि ग्रुप सी में जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स हैं जो वॉर हाइपोथेसिस को भी हाईलाइट कर रही हैं, एक्सरसाइज को भी कर रही हैं, तो बेसिकली दे आर नॉट रिलेवेंट टू मेक अ डिसीजन। तो ये थाउजेंड्स ऑफ रिपोर्ट्स तो आपकी ऐसे ही आपने सॉर्ट कर दी। अब 2 ही लॉजिकल प्रोबेबिलिटी बनती है, या तो ग्रुप सी में जो रिपोर्ट्स हैं उनके बेसिस पर जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, मतलब वॉर भी हो सकता है, एक्सरसाइज भी हो सकती है, या फिर ग्रुप ए और ग्रुप बी में से एक फॉल्स है। तो अब आपके पास कुछ डजन्स ऑफ रिपोर्ट्स रहती जिन्हें आप सॉर्ट करते, उनको टेस्ट करते फॉर रेफ्यूटेशन, और मे बी आप एक मोर एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर लेते। फाइनल स्टेज में जो एस्टिमेशन होता तो क्या होता, ये कंक्लूजन पे पहुंचते मे बी इंटेलिजेंस एस्टिमेटर कि ग्रुप सी वाला जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई है, ज़्यादा रिपोर्ट्स उसको वेरीफाई कर रही हैं। तो अगर वो अपनी गवर्नमेंट को ये भी बोल देते that we are unable to decide whether war होने वाला है या exercise होने वाली है, then maybe the government could get some time to mobilize, would have get some time to mobilize their troops. उन्हें समय मिल जाता अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करने का। लेकिन वो लगातार इसी बात पर टिके रहे कि there is no probability of the war, क्योंकि उन्होंने वेरीफाइंग पर फोकस किया, जबकि प्रोफेसर आइजैक बिन इजराइल का जो मेथड है वो रिफ्यूटेशन पर फोकस करता है। बेसिकली इनका मेथड ये कहता है दैट इन अ सिचुएशन व्हेन यू हैव 2 हाइपोथेसिस, one which is supported by the information
that verifies it, and one which has not much information that can verify it, then you should not pick the one which has many information that supports it. Rather, you should pick that which has no information that can refute it. अगर आपकी उस हाइपोथेसिस को कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो रिफ्यूट नहीं कर पा रही है, देन यू शुड गो फॉर दैट. तो अगर इसी सिनेरियो की हम बात करें तो लेट्स से आपको ऑन द स्पॉट अगर एक अपना एस्टिमेट देना होता, इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ द चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर, तो आप प्रोफेसर आइजैक बिन इज़राइल के हिसाब से अगर इस मेथड के हिसाब से सोचते तो आपका वहाँ पर प्रिडिक्शन ये होता कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वॉर इज़ मोर हाई, मतलब आप ग्रुप ए को प्रेफर करते, क्योंकि ये तो संभव है दैट द एनिमी इज़ creating a deception, masking the war behind the exercise. But ये होना संभव नहीं है that he is masking the exercise behind the war. तो सिंपल लॉजिक तो यही बनता है कि वॉर हाइपोथेसिस को ही पिक करना चाहिए था. लेकिन उन्होंने ये भी बोला है बाद में कि लॉजिकल बेसिस पर बोला जाए तो उस समय जो सिचुएशन थी उस हिसाब से जो एस्टिमेट किए गए थे वो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रू थे, क्योंकि उस वक्त की जो अप्रोचेस थी वो वेरीफाई करने पर ही फोकस करती थी, और चीफ इंटेलिजेंस जो ऑफिसर थे इजराइल के वो वेरिफिकेशन पर ही सारा का सारा फोकस कर रहे थे कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो इस हाइपोथेसिस को वेरीफाई कर रही है. तो ये संभव है कि उन्होंने एक लॉजिकल एरर किया होगा, नॉट साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल, जैसा कि बाद में प्रचार किया गया कि उनका ये पर्सनल फेलियर था, उसको उन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट किया है. लेकिन उन्होंने कहा है कि जो मेरा मेथड है द क्रिटिकल अमेंडेड मेथड, उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज तो यही है कि आपकी कैटेगराइजेशन हो जाती है, आपकी सॉर्टिंग हो जाती है, और जब रिफ्यूटेशन के माइंडसेट के साथ हम कुछ सर्च करते हैं, सॉर्ट करते हैं, तो फिर हम ज़्यादा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं फ्रॉम द सी ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड देन ही से दैट अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए कि आपके पास इंफॉर्मेशन है और आपके पास एक थ्योरी है, और अगर आपकी उस थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए, उस थ्योरी को बार बार चेक करने के लिए बाद भी सिचुएशन सेम रहती है, दैट इंफॉर्मेशन भी है एंड थ्योरी भी है, देन यू शुड ऑलवेज रिजेक्ट द थ्योरी. उन्होंने बोला है कि यहाँ पर एम्फेसिस करने की ज़रूरत है दैट द क्रिटिकल अमेंडेड मेथड दैट ही प्रपोजेस, द वे ऑफ वर्किंग दैट ही प्रपोजेस इन द इंटेलिजेंस रिसर्च, इट अप्लाइज टू एनी रिसर्च फील्ड एंड इवन इन द नॉर्मल रूटीन प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ, ऑफ द कॉमन डे लाइफ. सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस मेथड की है वो ये है दैट इवन दो विद दिस मेथड एज वेल वी कैन नॉट प्रिवेंट द फेलियर्स. हो सकता है कि क्रिटिकल अप्रोच के साथ भी अगर एस्टिमेशन किया जाता तो योम किपुर वॉर के समय भी हम फेल हो जाते. दैट इज़ देयर पॉइंट, क्योंकि फेलियर को यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, फेलियर विल बी देयर, यू कैन नॉट प्रिवेंट दैम. बट इस मेथड का यूज़ करने का बेनिफिट ये है दैट इट गिव्स यू अ स्कोप टू लर्न फ्रॉम योर एरर, क्योंकि आप एक लॉजिकल प्रोसेस के साथ चल रहे हैं. So it prevents you to repeat the same error in the future. And because your approach is very scientific, तो आप हर बार अपने मेथड को और ज़्यादा इम्प्रूव करते जाते हैं. Like in the science, that's how the science work. With each failing experiment, you improve your methods. And that should be the way of the intelligence research and estimation as well. प्रोफेसर आइजैक बिन इज़राइल ने एक और इंटरेस्टिंग बात हाईलाइट की है. उन्होंने कहा है कि कंसेप्चुअल थ्योरीज फ्रेमवर्क बनाने में भी ये मेथड उनकी हेल्प करता है, एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स का अपना एक रोल है. उसकी प्रोसेस में आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ काफ़ी इन्हेंस होती है. एंड देन फाइनली ही सेड दैट इस मेथड को, साइंटिफिक मेथड को इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एस्टिमेशन में यूज़ करने का एक क्राइटेरिया ये है कि द इंटेलिजेंस एस्टिमेटर
the officer responsible for the estimation of intelligence, should be creative. He should have the critical thinking. He should have the ability to criticize his colleagues' theory and his own theories as well. क्रिएटिव होना, क्रिटिकल थिंकिंग होना, बोल्डनेस होना फॉर क्रिटिसिज्म, इवन इफ वो क्रिटिसिज्म अपने सीनियर का करना हो, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस मेथड के लिए ज़रूरी हैं. और कभी अगर कुछ प्रॉब्लम आए, देन ही सेड दैट द इंटेलिजेंस एस्टिमेटर शुड बी इंटेलिजेंट टू हैंडल दोज प्रॉब्लम्स. तो एक यूनिक अप्रोच को देता है ये मेथड टू थिंक. और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने युवा साथियों के साथ इसे साझा किया, इसके रेलिवेंट एस्पेक्ट्स को शेयर किया. ये एक पर्सपेक्टिव देता है और कहीं ना कहीं इस तरीके से सोचने से हमारी क्रिएटिव एबिलिटीज़ और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग में इम्प्रूवमेंट होता है और हमें कुछ नया सीखने को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं. और अगर इसे अपनी चिंतन मनन की प्रक्रिया में हम एक ब्रेन एक्सरसाइज जैसा इंक्लूड करें तो ये और भी अच्छा रहेगा. ऐसा किया जा सकता है. नाउ टू कंक्लूड आई से वन थिंग. During the last 2 decades, the intelligence research as a field has undergone some major transformations. काफ़ी सारे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं इस फील्ड में. अगर हम बात करें तो फ्रॉम द लेवल ऑफ एग्जैक्टिट्यूड से लेकर रैशनैलिटी हाइपोथेसिस से लेकर टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स टू डिटेक्ट, ऑब्जर्व, monitor and assess the change, almost everything has improved a lot, significantly. What has not changed is the core objective and the philosophy of intelligence. Today we tend to think, today we have this view that the big tech platforms and the internet is the biggest source of information available to us. But कुछ ऐसे भी views exist करते हैं. There are certain views that exist which claims that these big tech platforms and internet itself, जिन home countries से belong करता है, it is a part of their military and intelligence research projects. And if I talk in the language of the method we just discussed, the approach mentioned in the paper we discussed. So if there is not sufficient information that can verify this fact, then there is no information that can refute it as well. So here I leave you with one question. यहाँ पर मैं एक प्रश्न के साथ अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ. Due to our over-engagement on these platforms and their daily improvisations, what are the probabilities that we will see a phase in future when we will have no time to think, visualize, or create an organic idea, particularly the one that is related to our national interest? क्या ये संभव है कि हमें कभी ये समय ही ना मिले कि हम किसी ऐसे ऑर्गेनिक आइडिया को विजुलाइज कर पाएँ, क्रिएट कर पाएँ, थिंक कर पाएँ जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से संबंधित हो? थिंक अबाउट इट. नमस्कार.